teachers, my dear friends. I am Preeti Saurabh, student of BSc Nursing second year, and today we are going to make an awareness on World AIDS Day. As you all know that World AIDS Day is celebrated on 1st of December in 1998. To create the more awareness about this day, let me call Manish Kumar and to elaborate the function and to give the short introduction about AIDS. Good evening, all my respected teachers and my dear friends. Myself Manish Kumar. Today I will represent. You all know today is World AIDS Day. It's celebrated first in 1918 at 1 December. HIV continues to be a major global public health issue, as there is no cure for HIV infection. 8 lakh people suffering from HIV infections. 3.96 lakh people suffering contaminated disease नहीं है. एड्स पेशेंट के साथ हम लोग रह सकते हैं, खाना शेयर कर सकते हैं, उसके यूज किए हुए ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं. स्प्रेड तक बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में बहुत अवेयर नहीं है. एड्स का फुल फॉर्म इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स. In this disease, deficiency of immune systems acquired during the lifetime of our individual. ये एक तरीके का डिजीज है जो कि हम लोग अपने दिनचर्या में कुछ गलतियों की वजह से अपने अंदर ले लेते हैं. जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते वक्त हम लोग सावधानी नहीं बरतते हैं, मतलब बिना चेक किए हुए ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर लेते हैं. हो सकता है कि इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड हम लोग अपने अंदर ले लें, या फिर मल्टीपल टाइम एक सिरिंज को यूज करना, ये भी मेजर काउज है. और भी कई इसका रीजन है. इसका इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि इन्फेक्शन होने से और फर्स्ट सिम्टम अपीयर होने के बीच का जो गैप है काफ़ी लंबा है. इसलिए हम लोग पता नहीं कर पाते हैं अर्ली स्टेज में कि हमको इन्फेक्शन है या नहीं. इसका इंक्यूबेशन पीरियड है कुछ मंथ से लेकर के 10 साल तक भी हो सकता है कि 10 साल तक हम लोग को पता न चले. इसका जो एजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं. दो जन पोस्टर होल्ड कर लो. And I am going to share a few words on World AIDS Day and with my friend Abhilasha Kumari and Rakhi Kumari, and I want to explain by the help of this picture that you can look that this today is World AIDS Day. It means the whole world considered this day as a World AIDS Day. So this disease is spread among all the world. No any country is free from this disease. And by this picture, I want to share a few words about acquired immunodeficiency syndrome and human immunovirus. So AIDS is a disease. It is a group of disease and caused by human immunovirus. You will be able to see the picture of that virus. You can look, and this spread by the mixing of blood and body fluids, making the immune system defective that cause AIDS. So human immunovirus, it affects the immunity system. It disrupts the capacity of immunity on HIV infected person using HIV infected syringe, transfusion of blood to a person, and from infected mother to child. And I want to tell you that causative agent is human immunovirus, but the transmission is caused due to come in the contact of body fluid of infected person and due to using infected syringe. Causes and transmission both are different, and we are also going to share a drama by which you can look that how people react with a patient who is suffering from AIDS, and how they discriminate that person when he suffered from AIDS. So symptoms of this disease are body defense mechanism goes low in AIDS, mean the ability of immunity system
acquired with this disease is destructed and maintained. First of all, good evening to all my respected teachers and all my dear friends. I am here to describe the modes of. I am here to describe some modes of AIDS transmission. First one is having unprotected sex. When any person make intimate relationship with multiple partners, then there is high risk of spreading the infection, and the virus can enter your body through mouth, nose, and small tears that sometimes develop in the rectum or vaginal region through sexual activity. And always use a new latex or condom every time when you have sex. Avoid multiple partners. And the second one is by sharing needles. Never use infected needles. Always use sterile needles and use disposable syringe. AIDS Day has a specific theme. This year's theme is inequality and in AIDS. World AIDS Day is designated on 1st December every year. It is an international day dedicated to raising awareness about HIV infection or AIDS. Let us know about the sign and symptom of AIDS by my friend Pooja. That is not communicable. It is a disease that is caused by the sharing of body fluids. In the AIDS, first we will all my friends had told that AIDS is a disease that is caused by HIV virus, a retrovirus, or a RNA virus. This is the type of virus which cannot be secreted by a physical contact like talking, speaking, or sharing our foods. These are the contacts that we can do by a sexual affair with another partner, infected raisins, and etc. As all and give a short drama of 5 minutes. A big round of applause for my team. ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग एड्स पे जानकारी जितनी हो सके उतनी ज़्यादा जानकारी बढ़ाएं। तो ये जो हमारा ड्रामा, ये जो हमारा छोटा सा नाटक है, ये इस पे आधारित है कि हम लोग एड्स को कैसे सोसाइटी में देखा जाता है, समाज में कैसे एड्स को देखा जाता है और एड्स क्या कर रहा है और क्यों इतना डिस्क्रिमिनेशन हमारे सोसाइटी में हो रहा है कि किसी को अगर एड्स है तो क्यों। तो ये कहानी कुछ इस तरह की है। एक इस्लामपुर गाँव था जहाँ पे कुछ लोग जाते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेक्टर में और दिखवाने के लिए, रेगुलर चेकअप के लिए लोग जा रहे हैं वहां पर, और वहां का दृश्य हम लोग दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमारा दृश्य है ये पीएचसी का है जहाँ पे लोग जो है नॉर्मल हेल्थ चेकअप के लिए जा रहे हैं और नॉर्मल हेल्थ चेकअप के लिए जा रहे हैं ताकि इनको जो भी थोड़ा बहुत समस्या है इसको दूर निदान किया जा सके। हेडेक रहता है, पेट में दर्द करता है, चक्कर आता है। तीन टाइम। इस साइड में कैसे होता है? लेफ्ट साइड, बायां साइड। मेरा नाम क्या है? क्या प्रॉब्लम है आपको? मत घूमता है, पेट में दर्द करता है। स्टेज पे खड़े होके ऐसे करोगे? देख रही सामने। मत घूमता है, पेट में दर्द करता है। इस साइड में पेट दर्द करता है, इधर
लगातार खून के संचार लिए जा रहे हैं और सारी जांचें को देखा जा रहा है। निकाल दी बता। हाँ मास्क लगा के आपको आना चाहिए। जी मैम लगा रहे हैं। आपका रिपोर्ट देखिए, आपका नॉर्मल है। ये जो ममता देवी है, इनको डॉक्टर साहब ने कुछ जांच लिखा है। इन जांच को करवाने के लिए इनके हस्बैंड जो है निरंजन कुमार को लेकर पाटीदार की ओर प्रदेश में फेस तो दिखा दो। बर्बाद कर देंगे हमर घरवा के, हमर इज्जत डुबा देंगे। आवे थे दोनों के एकदम मुंह काला कर देंगे दोनों के। अभी रिपोर्ट नहीं मिला है। आएगा रिपोर्ट दिखाओ। अभी रिपोर्ट मिलेगा ना 2 दिन में मिलेगा। अभी तो सब बोल के गए कि रिपोर्ट मिल गया है। वो लोग भी दिखवा के आया था। तो कब से देंगे आप? क्या हुआ? हटो सुना दे। रिपोर्ट मिलेगा 2 दिन में, 2 दिन में देख के अभी करेंगे। फेस शो करो ना। तुम मेरे से अभी बात नहीं करो। 2 मिनट रुको, हम अपना बेटा से बात कर रहे हैं ना। तो कहा हम अपना पहले बेटा से बात करेंगे। तुम बहू हो, भूल गई हो क्या? रिपोर्ट नहीं आया है। तो ये क्या लिए हुए हो अरे तुम? कुछ दवा का ना, ये दवा का बेवकूफ मत समझो हमको। अरे अभी नहीं मतलब ना, कल तो सब बात बता रहा है। गजब हो ये तुम लोग बोलता तब ना। 10 लोग आके हमको बोला है कि उसको एड्स हो गया है। भाई रिपोर्ट देखेंगे तब हम बताएंगे। हम तुमको बोले ना 2 मिनट 1 मिनट शांत रहो, हम अपने बेटा से बात करने दो। बोल दिया तो चुप रहो। बोले जा रही हो। रिपोर्ट मिलेगा, उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद बताएंगे क्या हुआ। बहुत उसका हाल क्या करवाएगा? अब तुम्हारी बीवी को एड्स हो गया है। तो एड्स कितना खतरनाक घातक बीमारी है तुमको पता भी है? रिपोर्ट मिलेगा तब जाके कैसे हम सुनने को बोलेंगे मतलब एड्स हो गया है। तुम अपनी बीवी का पक्ष मत लो। बस मैं ये है ना, सही तो बोल रहा हूं। ऐसे थोड़ा नहीं बोलेगा बोल के हमको बोल रहा है कि अपनी बहू को और बेटा को सब बाहर निकाल दो। मतलब बोलने ऐसा मत कीजिएगा, हम कहाँ जाएंगे हम लोग? कहीं भी जाओ, हमको क्या मतलब? पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा तुम्हारे चक्कर में। नहीं, हम नहीं कुछ सुनना चाहते। कहाँ जाएंगे बताओ? घर छोड़ के चले जाओ। गांव से निकलना तुम लोग। या देखा ये रिपोर्ट बना के ले HIV पॉजिटिव है, एड्स हो गया। देख कहाँ तू कहाँ? चल खड़ा हो जा साइड में। चल खड़ा हो। अच्छा आपको देखना है ना। ये देख
चाहिए कोची कोची कर ली खाली कहाँ से खाली पहले अच्छा सुइया बोला तो तेरा बुरा लगा चलो ठीक है हाल करने को करना है जाके चेक करा ले ले मारे खोए करे एकरे खाए से का ऐसा मत करो क्या हो गया रे दिखा देगा ना तुम लोग दिखाने का कहां दिखाएगा ये इसका कोई इलाज है इलाज है कहां इलाज है बंगाल चले जाएंगे ना बेंगलोर चला जाएगा और तू कहां लेके जा रहा है रहे जब कैसे भगा रहेंगे कहाँ लोग हमको क्या पता जहां कमा रहा था वहीं पर रहना शादी किया था इससे तक जब से आया ना मेरा बेटा बर्बाद हो गया मेरे से बात तक नहीं करता है तू कहां जा रहा है रो रही है रो के दिखाएगा क्या छोड़ दे अब चेक करा है ना चेक करा यहाँ मत आना चलो निकल यहाँ से जाओ यहाँ से ना से जहाँ जाना है इसके साथ जाओ भूखा मेरा पूरा गाँव खाने लायक नहीं है चलो जाओ यहाँ से इधर निकलो इधर चलो जाओ 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 नहीं हम ऐसे छोड़ेंगे जाओ नहीं हम नहीं छोड़ेंगे जाओ क्या हाँ ठीक है नहीं है जाओ ताला लगा के हम और को खाए नहीं ये ना तू कुछ हमरा सुनावे आइला भगा लिए ना अब नहीं खाते में आज कोई बात नहीं तो सर बेटा से ओकर बढ़िया से तैयारी कर गांव में के बाद दोनों पति पत्नी को घर से निकाल दिया गया और अपने पत्नी के साथ बेंगलोर की तरफ रवाना हो चुके हैं ताकि बेहतर इलाज मिल सके एड्स का बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हैं ताकि बेहतर इलाज मिल सके क्या नाम है आपका ये रिपोर्ट है तो इसका ठीक हो क्या करता है रेलवे में जॉब करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर पॉजिटिव आ गया है और आप लोग यहाँ आए हैं इससे पहले नहीं दिखाए थे हाँ दिखाए थे अपने गाँव में तो आपके गांव में क्या हो गया तो ये रिपोर्ट है HIV का तो HIV का था तो कोई का गांव वाला कुछ नहीं किया कुछ किया नहीं कि जाके देखा दो तो मैं ठीक है आप इनको थोड़ा देख लीजिए टमाटर्स वगैरह देखिए कि क्या प्रॉब्लम है इनको हाँ देखो आप बताइए क्या हो गया इसका गाँव वाला से देखवाए तो बोला कि HIV है तो बोला कि मतलब जाके दिखवा लो और पिछले माह में पता चला तो गांव में जब आप गए तो आपका जो हॉस्पिटल था उसमें कोई भी मेडिसिन वगैरह नहीं दिया इनको कि हाँ मेडिसिन से तो ठीक नहीं हुआ उससे ठीक नहीं हुआ नहीं हुआ है खाना है मतलब बता नहीं मुझे आपको देख के लग रहा है कि गांव में आपके साथ सुलूक अच्छा नहीं हुआ क्या दिक्कत है बताइए भगा दिया गया बंगला में तो बहुत बेइज्जत किया गया भगा दे के चले जाओ कोई नहीं समझता जहाँ तक कि मम्मी अपने मम्मी भी तो भगा दिए घर से निकाल दिए कितने दिन पहले की बोलता ये 16 दिन पहले का है सुनिए सिस्टर आप एक चीज कीजिए कि इनको थोड़ा बताइए और थोड़ा समाज को भी जागरूक कीजिए कि ये क्या है मतलब ठीक है मानते हैं कि इनको एड्स हो गया है तो एड्स हो गया है तो डॉक्टर्स का काम ये है कि एड्स को क्योर कैसे करना है आप ये तो जानते हैं आप तो पढ़े लिखे हैं देखो तो जब एड्स हुआ तो आप इसका कारण जानने का कोशिश नहीं किए कि एड्स कैसे हुआ है इसका पूरा मतलब विवरण नहीं जानता कि हम हल्का फुल्का जानते हैं समय से ये मान रहे हैं कि आपको थोड़ा खराब लगता है लेकिन ये सच्चाई है कि एड्स इनको हो गया है और एड्स का वायरस इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इनको जो पूरे बदन में फैल गया है और इवन आपका बच्चा भी जो है इससे पीड़ित हो गया है तो आप क्या चाहेंगे कि आपका जो आने वाला बच्चा हो वो एड्स के साथ पैदा हो नहीं, ऐसा नहीं चाहते हैं तो देखिए हम जो बोलना चाह रहे हैं वो आप समझ रहे हैं
अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, इनको टीडी पड़ा है और टीडी पड़ने के बाद जो इंजेक्शन से पड़ा है वो इन्फेक्टेड था, मतलब उसमें पहले से कोई HIV का पेशेंट था, उसी से गलती से इनको पड़ गया। कितना पड़े डॉक्टर के बच्चा दोनों को आपको समझना पड़ेगा कि ये आपकी बीवी के अलावा फिर बाद में किसी को ना हो, तो इसीलिए हम बहुत दुख के साथ ये कहना चाह रहे हैं आपको कि आप इनके बच्चे को, अपने बच्चे को अवॉइड करा दें। नहीं बचा दी हम लोग बच्चा के, देखिए आपको हम लोग बचा सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचें कि आपको एड्स हो गया है, अगर गलती से आपके बच्चा में फैल गया तो क्या करेंगे आप? जो बीमारी से आप जूझ रही है उसी बीमारी से आपका बच्चा भी जूझेगा। इसका कोई निदान नहीं है। निदान यही है, यही सब है कि ये जरूरी नहीं कि सेक्सुअल कांटेक्ट होने से ही फैलता है, ये हम गलती से भी फैलता है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि आपके गलती के कारण नहीं फैला, आपको समझदारी है। अगर आप मान लीजिए इनको नहीं अवॉइड करते हैं तो आपका आने वाला बच्चा भी एड्स से पीड़ित होगा, फिर उसके आगे वाला आने वाला बच्चा भी एड्स से पीड़ित होने का चांस है, और अगर नहीं भी होता है तो वो किसी न किसी जनरेशन में आपके बच्चे को इफेक्ट हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम एज ए डॉक्टर और हमारी पूरी टीम पूरे डिस्कस करते हुए ये सोच रही है कि आप इस बच्चे को अवॉइड करा दीजिए। आप दोनों की मर्जी रहेगी तो हम लोग सारा सर्जरी प्रिकॉशन, सारा जो डॉक्यूमेंटल वर्क है वो कर लेंगे, और आप लोग अच्छे से, क्योंकि आप जैसे आपको दिख रहा है कि आप लोगों का जो जीवन है सही है, आप लोगों के बीच में सारे रिश्ते भी सही हैं, तो सोसाइटी के कारण जो ये भेदभाव हो रहा है, ये भेदभाव हम लोग नहीं करेंगे आपके साथ। और आप ये काम कीजिए कि इनके बच्चे को आप गिरा दीजिए, अवॉइड करा दीजिए, और क्या कीजिए कि आप एक बच्चे को अडॉप्ट कर लीजिए। इससे ये होगा कि सबसे पहली बात तो हमारा जो डिजीज़ है, इनका जो डिजीज़ है, जिनको एड्स के कारण, जिनको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण अब इतना भी बढ़ गया है कि फीटस पे भी पहुंच गया, फीटस को भी अफेक्ट कर चुका है, तो अब कोई फ़ायदा नहीं है। बस इतना कर सकते हैं कि इनका अबॉर्शन कर देते हैं और इनको हम लोग मेडिकेशंस के अंदर रखते हैं ताकि हम लोग इनका जान बचा सकें। और क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं तो हम लोगों की पूरी टीम, निकिता भी है, स्पेशलिस्ट है, आपको यही कह रही, हमारी पूरी टीम मिलकर यही कहना चाह रही है कि आप समझिए, अवंतिका का भी सीनियर डॉक्टर है यहाँ हमारे हॉस्पिटल की, अपना सर्जरी का प्रोसेस कर देंगी आपका, आप इनसे थोड़ा बात कर लीजिए और आप थोड़ा काउंसलिंग कर दीजिए, जिससे कि आप मतलब एक से आपको क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा, आप दोनों के लिए सही होगा। अब आप जो भी नीडल यूज़ करेंगे वो दोनों उसको शेयर नहीं करना, हमेशा स्ट्राइल नीडल यूज़ करना, उसको प्रोवाइड करना कि दूसरे को भी उसे यूज़ नहीं करें। देखिए इसका जो कारण है ना कि आपके थोड़ा सा लापरवाही हुआ है, जैसे हम लोगों ने देखा कि ये हम लोगों का प्रोग्राम था जिसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से वर्ल्ड अवेयरनेस डे हमारे एड्स के बारे में दिया। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं निकलूँ या जब मैं कहीं भी जाऊँ, चाहे वो हॉस्पिटल हो या कोई भी हो, हमारी एज अ टीम जैसे आज वर्क की है वैसे ही आप लोग जहाँ भी जाओ, आपका फ्यूचर जहाँ भी हो, लेकिन ये हमेशा याद रखो कि हम लोगों का मोटिव क्या है। Nurses is a good communicator between all the people and can prevent many incurable diseases from spreading. Thank you all. Thank you teachers.